Yes, beta. Good morning to all. Now, in our last class, we started the chapter visualizing solid shapes, right? So we'll continue with that. So in visualizing solid shapes, we started with the 2D. We started with discussing with the 2D figures, the 3D figures, right? And I told you the 3D figures are those figures which are having 3 dimensions, which have the volume, means which have the capacity to fill something in it, right? Further, now open your book, पेज नंबर 164. जैसे आपकी बुक में जो एक्सरसाइज 10.1 है, 10.2 है, दैट वी आर नॉट टू डू. ठीक है, इस चैप्टर में जितना करवाया जाएगा बस उसी में से आप एग्जाम में आएगा. 10.1 10.2 वी आर नॉट टू डू. ठीक है, पेज नंबर 164. Now they are discussing about the prism, the pyramids, right? And there is a term polyhedron. So first of all, we have done in our previous classes about the 3D figures जैसे cone, cylinder, sphere. ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हमने बेटा डिस्कस कर क्या करना है, prism and pyramids. So first of all, we have to write the definition of prism. It is written on your book. In your book, page number 165. देखिए, अंडरलाइन करो. And from there you have to write the definition. Write down. देखो, second paragraph में है. A prism is a polyhedron whose base and top are congruent polygons and whose other faces, that is lateral faces, are parallelogram in shape. Lateral faces are parallelogram in shape. What does it mean? See, देखो बेटा, इसमें these are the prism. According to the definition, what they are saying that the base and the top are congruent polygons. The base and the top are congruent polygons. थोड़ा इस तरह से कि जो इसका बेस है और जो इसका ये टॉप है, ये कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट. जैसे यहाँ पर क्या बेस है, ये बेस है और ये टॉप है, तो ये कैसे है, कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट मींस बिल्कुल सिमिलर. ठीक है, इन शेप एज वेल एज साइज. and the lateral surface area are, lateral surface faces are parallelogram. Lateral means curved. Lateral means curved. Curved मतलब साइड वाले. ठीक है, और जो उसके साइड वाले फेसेस हैं, जैसे ये हो गए, ये हो गए, इधर ये है, वो कैसे होंगे, पैरेललोग्राम. ठीक है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रिज्म की फॉर्म के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे. ठीक है, कि ऐसे तो बहुत सारे प्रिज्म होते हैं. जैसे मान लो इसी की बात करें, दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रायंगुलर प्रिज्म. Why this is triangular? Because at the base we are having triangle, right? And this is what, this is square prism, as at the base we are having the square. ठीक है, तो जैसे आपकी बुक में ट्रायंगुलर प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म है, इन केस एग्जाम में आपको आ जाए ड्रॉ द प्रिज्म, तो ऐसे आउट ऑफ द वे कोई भी प्रिज्म नहीं पूछेंगे. हेक्सागोनल प्रिज्म, हेप्टागोनल प्रिज्म नहीं, जो करवाया बस उसी में से इवैल्यूएट करेंगे. ठीक है, so what is a prism? A prism is a polyhedron whose base and top are congruent polygons and whose other faces, that is the lateral. Lateral means
साइड वाले जो फेसेस हैं that are parallelogram in shape. So you will write the definition and you will draw these two figures. Figures are already drawn in your book also. Am I clear? नेक्स्ट आप लिखोगे पिरामिड. पिरामिड की डेफिनेशन है बेटा, देखो आगे लिखी हुई है बुक में ही. A pyramid is a polyhedron whose base is a polygon of any number of sides, whose lateral faces are triangles with a common vertex. A pyramid is a polyhedron whose base is a polygon and whose lateral faces are triangles. लेटरल फेसेस मतलब साइड वाले फेसेस क्या है? ट्राइंगल. प्रिज्म में जो साइड वाले लेटरल फेसेस है वो कैसे हैं? पैरेललोग्राम. पिरामिड में वो क्या कह रहे हैं? कैसे हैं? ट्राइंगल. जैसे इधर देखिए, आफ्टर राइटिंग द डेफिनेशन लेट अस डिस्कस अबाउट ट्राइंगुलर पिरामिड. ट्राइंगल पिरामिड में क्या होता है? एक ट्राइंगल बनाते हैं, बाहर एक कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट को इसके तीनों वर्टेक्स के साथ क्या करते हैं बेटा? जॉइन. दिस इज द ट्राइंगुलर pyramid. What is the definition of pyramid? Here the base is a polygon. Polygon can be of any number of sides, 3, 4, 5, and whose lateral faces are triangle. जो साइड वाले फेसेस है वो कैसे है? ट्राइंगल. जैसे अब हम बनाएंगे स्क्वायर पिरामिड. स्क्वायर पिरामिड बनाते हैं. We will draw one square. We will take one point. इसके 4 वर्टेक्स हैं. उस पॉइंट को चारों वर्टेक्स से क्या कर देंगे? जॉइन. You can see the base is a polygon of 4 sides, and the lateral faces are triangles. समझ आ गई बात सबको? So you will write the definition of prism, pyramid. आगे लिखिए. ये डेफिनेशन लिखने के बाद बेटा you have to write all the prism and pyramids are also known as polyhedrons. जैसे जो 3D फिगर्स होती हैं, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, वो पॉलीहेड्रन्स नहीं होती. वो क्या है? सॉलिड शेप, 3D फिगर्स, सिंपल. ठीक है. पॉलीहेड्रन्स क्या होते हैं? ऑल द प्रिज्म एंड पिरामिड्स आर नोन एज पॉलीहेड्रन्स. उसके बाद बेटा पेज नंबर 164 देखिए. पेज नंबर 164. लास्ट में डेफिनेशन लिखी है रेगुलर पॉलीहेड्रन्स. रेगुलर पॉलीहेड्रन्स. यू नो व्हाट आर रेगुलर पॉलीगन्स? Regular polygon, you know, a polygon in which all the sides as well as all the angles are equal, that is regular. जैसे square, equilateral triangle, that are regular. जैसे rectangle है, rectangle is not a regular polygon. Remember, polygon याद है सबको? Polygon you are doing from 6th class. Polygon is a closed figure made up of line segments. ठीक है. लाइन सेगमेंट्स से जो फिगर बनती है वो क्या होती है? पॉलीगन. ठीक है. जैसे रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, quadrilateral, any quadrilateral made up of 9 segments, trapezium, all are polygons. Now what are regular polygons?
रेगुलर में सारी साइड और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, और इररेगुलर मतलब जो रेगुलर नहीं है उसमें ये जरूरी नहीं है कि सारी साइड्स इक्वल हो। जैसे रेक्टेंगल है, rectangle is not a regular polygon. Why? Because in rectangle all the four sides are not equal, though all the angles are equal. Each angle is 90 degree in the rectangle, but all the four sides are not equal, so therefore rectangle is not a regular polygon. I hope it is clear to you. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास फिर फर्दर है regular polyhedrons. So you have to write the definition of regular polyhedron. See, it is written in your book. A polyhedron is said to be regular if its faces are made up of regular polygons. अगर उसके जो faces हैं वो कैसे हैं? रेगुलर पॉलीगन मीन्स जैसे अगर हम क्यूब बनाते हैं, मैंने क्या बनाया? क्यूब। क्यूब बनाया, इस क्यूब में क्या होता है? What if we have to talk about the faces of the cube? I told you that day the faces of the cube are of which shape? Square. जो फेस है क्यूब का वो कैसा होता है? स्क्वायर इन शेप। ठीक है, और जो फेस होता है क्यूबॉइड का वो कैसा होता है? रेक्टेंगुलर इन शेप। तो अगर हम क्यूबॉइड बनाएं कैसे रेक्टेंगल बनाएंगे? एक और रेक्टेंगल बनाएंगे, उनको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास बनता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का जो फेस है वो कैसा होता है? रेक्टेंगुलर, और क्यूब का जो फेस है वो कैसा होता है? स्क्वायर। एंड स्क्वायर यू नो इट इज अ रेगुलर पॉलीगन। स्क्वायर इज व्हाट? इट इज अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मतलब उसके सारे साइड्स क्या हैं? इक्वल। तो जो पॉलीहेड्रन जिसके फेसेस कैसे हैं? रेगुलर पॉलीगन से बने हुए, वो क्या होगा? एक रेगुलर पॉलीहेड्रन। समझ आ गई? और आगे लिखा है एंड द सेम नंबर ऑफ सॉरी एंड द सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट एट ईच वर्टेक्स, एंड द सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट एट ईच वर्टेक्स। जैसे ये फेस है, सारे फेस पे ये वर्टेक्स पे मीट कर रहा है, ये वाला फेस इस वर्टेक्स पे मीट कर रहा है, ये वाला फेस इस वर्टेक्स पे मीट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे है, ये वाला फेस है जो वो इस वर्टेक्स पे मीट कर रहा है, इनके वर्टेक्स पे मीट कर रही है फेसेस। ठीक है, तो ये क्या है? रेगुलर पॉलीहेड्रन। बेसिकली कैसे होता है? पेपर में क्या आएगा? या तो बेटा आपको फिगर दी होगी और पूछा होगा कि क्या ये रेगुलर पॉलीहेड्रन है कि नहीं। तो रेगुलर पॉलीहेड्रन का बेसिक जो पॉइंट है वो यही है कि जो उसके फेसेस है वो कैसे होने चाहिए? रेगुलर पॉलीगन से बने होने चाहिए। ठीक है, अगर फेसेस जो है वो रेगुलर पॉलीगन से नहीं बने होंगे तो वो रेगुलर पॉलीहेड्रन नहीं है। ठीक है, ये देखो आगे आपकी बुक में बना हुआ है। फर्स्ट फिगर इज रेगुलर पॉलीहेड्रन एंड द सेकंड वन इज नॉन रेगुलर पॉलीहेड्रन। This polyhedron is not regular. Please look into your book. All the sides are congruent, but the vertices are not formed by the same number of faces. 3 faces meet at A, but 4 faces meet at B. जो सेकंड फिगर है उसमें क्या है? 3 फेसेस A पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, 4 फेसेस B पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि equal number of faces should meet at each point. समझ आ गई बात? So you have to write the definition of prism, pyramid, then regular polyhedron, and then one more which I made you write that all the prism and pyramids are polyhedrons. इसके बाद एक और बात बतानी है,
जैसे मैंने आपको बताया कि सारे जो प्रिज्म है और जो पिरामिड्स हैं वो क्या होते हैं, पॉलीहेड्रन्स। नॉन पॉलीहेड्रन क्या होते हैं, जो फिगर्स जिसमें कर्व आ जाता है वो क्या होते हैं, नॉन पॉलीहेड्रन। आप देखोगे प्रिज्म और जो पिरामिड्स होते हैं, ऑल द प्रिज्म एंड पिरामिड्स आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अगर हम सिलेंडर बनाते हैं, सिलेंडर कर्व आ गया, सो इट इज अ नॉन पॉलीहेड्रन। इफ आई ड्रॉ अ स्फीयर, स्फीयर में भी कर्व आ गया, इट इज अ नॉन पॉलीहेड्रन। अगर बेटा मैं बनाती हूँ कोन, कोन में भी कर्व आ गया, सो इट इज नॉट अ पॉलीहेड्रन। बट जो पॉलीहेड्रन्स हैं वो कौन से हैं, ऑल प्रिज्म्स, ऑल पिरामिड्स, क्यूब, cuboid, cube is a polyhedron, cuboid is a polyhedron, sphere, cylinder, cone, they are not polyhedron because there we are having the curve. Yes Anve, बोलो। गुड मॉर्निंग मैम। मैम जैसे ये आपने कौन बनाया है, ये भी एक तरह से पिरामिड नहीं हो गया? नहीं बेटा, पिरामिड में ये नीचे सर्कल ही नहीं होता। ओके मैम, सर्कल आ गया ना, सर्कल नहीं होता, कोई पॉलीगन ही होता है। तो ये तो बेसिक था, ठीक है। प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है, ये आपको लर्न करना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो क्या होते हैं, फेसेस, एजेस, वर्टिसेस ऑफ द प्रिज्म एंड ऑफ द पिरामिड्स। आपने अपनी 7th क्लास तक जो एफईवी लर्न किए थे वो किसके, 3D फिगर्स के एफईवी हम आपको करवाते थे, कोन, स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, और हमने आपको करवाए हुए थे ट्रायंगुलर पिरामिड और स्क्वायर पिरामिड, राइट। But here in our this class, we will learn about the faces, edges, vertices. We will learn the general formula for FEV of prism and pyramid. जब हमें जनरल फॉर्मूला याद है तो हम किसी भी पिरामिड और किसी भी प्रिज्म का FEV फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो बेटा हमारी जो बेसिक फिगर्स हैं हम उसके FEV को रिकॉल करेंगे। मैं पेपर में सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो ये तो हमारे 6-7 का टॉपिक है, बट स्टिल वी विल रिवाइज। सिलेंडर, स्फीयर, कोन, ठीक है। पिरामिड्स नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे, जो पिरामिड का करेंगे जनरल फॉर्मूला FEV। जब भी आपने लर्न करना है जनरल फॉर्मूला और ये वाली फिगर्स के फेसेस, एजेस, वर्टिसेस, सो इट इज माय एडवाइस, ऑलवेज लर्न इट इन द सीक्वेंस ऑफ FEV, ठीक है। FEV जैसे रट्टा लगाते हैं ना, तो FEV तो उसमें जैसे क्यूब 6 फेसेस, 12 एजेस, 8 वर्टिसेस, 6 12 8 is what, FEV। सपोज पेपर में आ गया व्हाट आर द फेसेस, एजेस, वर्टिसेस ऑफ क्यूब, तो क्या करते हैं बच्चे, ऐसे लिख देते हैं, दिस इज व्हाट। अगर ऊपर आप नहीं लिखोगे कि ये 6 क्या है, 12 क्या है, 8 क्या है, यू विल नॉट गेट एनी नंबर, ठीक है। सो सिमिलरली क्यूब के भी बेटा यही है। सिलेंडर यू नो यू हैव 3 फेसेस, समझ आ गई कैसे। एक ये ऊपर वाला, जैसे अगर मैं चौक लेती हूँ, एक ऊपर वाला फेस, एक नीचे वाला, एक ये साइड वाला। साइड वाले फेस को क्या बोलते हैं, लेटरल फेस, लेटरल सरफेस होता है ये, लेटरल मींस कर्व्ड, साइड वाले को बोलते हैं कर्व्ड और द अदर वर्ड इज लेटरल। तो 3 फेसेस, एजेस कितने होते हैं, 2, एक ये कर्व्ड एज ऊपर वाली और एक ये नीचे वाली कर्व्ड एज। सो
zero vertex. Vertex means corner. Cylinder has zero vertex. Then sphere. Sphere means a ball. How many faces it has? 1, 0 edge and 0 vertex. Then cone. Cone. What are the examples of a cone? Birthday cap, right? तो देखो बेटा कितने फेसेस होते हैं. एक फेस जो आपको बाहर से दिखता है, एक जब आप इसको इस तरह से करोगे इधर से, ये वाला फेस, ठीक है, अंदर से, अंदर वाला फेस. सो 2 फेसेस, एजेस कितनी है? 1, ये वाली 1 curved edge and vertex 1 vertex. इतना नोट करो प्लीज. All right, written. Now write down, give the heading. General formula for faces, edges, general formula for faces, edges and vertices of pyramid and prism. पिरामिड के बेटा फेसेस होते हैं n+1, एजेस 2n, वर्टिसेस n+1. सिर्फ नोट करो, फिर मैं एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ. और प्रिज्म के होते हैं बेटा n+2, 3n, 2. Where n is what? Number of sides of a polygon. जैसे अगर ट्रायंगुलर पिरामिड है तो ट्रायंगल मतलब 3, तो n कितना हो गया? 3. अगर ऑक्टागोनल पिरामिड है, ऑक्टागोनल, अब पिरामिड है, पिरामिड कैसा है? ऑक्टागोनल. ऑक्टागन मीन्स 8, तो n क्या हो गया? 8. By using these formulas we can find the FEV of any pyramid and of any prism. जैसे हमारी पुरानी क्लासेस, पिछली क्लास तक हमने सिर्फ ट्रायंगुलर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड या कुछ प्रिज्म एक दो के FEV लर्न किए थे. जनरल फॉर्मूला से हम कोई भी प्रिज्म और पिरामिड की FEV कर सकते हैं. देन वी हैव यूलर्स फॉर्मूला.
I hope you remember. We will discuss it again. जो Euler's formula f plus v is equal to e plus 2, हम Euler's formula verify करते थे for cuboid, for cube like this. So we can verify Euler's formula for any pyramid and for any prism also. Euler's formula के लिए हमें क्या चाहिए? FEV. तो FEV हम इस formula से निकाल सकते हैं. इतना नोट करो. And if anyone having any doubt till now, you ask. Otherwise, I'll proceed. If anyone is still noting it down, please raise your hand. So I'll wait. So now, write down. Find the FEV of pentagonal pyramid. Find the FEV, faces, edges, vertices of pentagonal pyramid. ऐसे क्वेश्चंस ही आने आपको पेपर में. पेंटागनल पिरामिड. आपकी आवाज नहीं आ रही. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी. अच्छा, अब आएगी. अब आ रही है. यस मैम. सॉरी, ओके, वो वायर थोड़ी खिंच गई थी तो माइक का. So what I was saying that you have to find the FEV of pentagonal pyramid. So in pyramid you have to learn. आपने इसको तो रट्टा लगा लेना ना अच्छे से कि पिरामिड का है. पहले अपने माइंड में रखो कि मैडम ने बोर्ड पे लिखा था पिरामिड ऊपर प्रिज्म नीचे, पिरामिड ऊपर प्रिज्म नीचे. पिरामिड का n+1 2n n+1, प्रिज्म का n+2 3n 2n. जैसे भी आपने इसको अपने माइंड में लर्न करना है वो लर्न कर लो, पिक्चर इमेज सेट कर लो. ठीक है. So when you remember this formula, it is very easy to find. n कितना है? 5. So 5 + 1 6, 5 2s are 10, 5 + 1. So the FEV of pentagonal pyramid is 6 10 5. Similarly, you can find the FEV of any pyramid and any prism. Yes or no? अब लिखो बेटा यूलर्स फॉर्मूला, वो भी मैं लिखवा देती हूँ, फिर हम कल एक्सरसाइज शुरू करेंगे. यूलर्स फॉर्मूला राइट डाउन. F + V = E + 2. इसको भी इसी सीक्वेंस में लर्न किया करो. FV E2 बीच में दोनों को क्या है? प्लस. F + V = E + 2 where F, V, E are the number of faces, edges, vertices. ये आप लिख लोगे. ठीक है. अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, ये कर लेना होमवर्क में. Verify Euler's formula. Write down. Verify Euler's formula for number 1 cuboid. Verify
Euler's formula for number 1 cuboid, number 2 hexagonal pyramid, hexagonal pyramid, number 3 octagonal prism, octagonal prism, number 4 pentagonal prism, pentagonal prism. ठीक है, ऐसे कोई भी प्रिज्म मैंने जनरल रैंडम दिया है. वन आई विल एक्सप्लेन टू यू. सपोज क्यूबॉइड की बात करते हैं हम. 6, 12, 8. सबसे पहले आप FV लिखोगे, फिर आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड F प्लस V. 6 प्लस 8 14. लाइन लगाओगे राइट हैंड साइड E प्लस 2. 12 plus 2 14. You will see left hand side is equal to right hand side, hence verify. तो ऐसे ही बेटा जो भी मैंने आपको प्रिज्म पिरामिड लिखे हैं, पहले आप वो फिगर का नाम लिखोगे, उसके FV लिखोगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डालोगे. यू विल सी द लेफ्ट हैंड साइड will be equal to right hand side. If in case the left hand side is not coming equal to right hand side, that means your FEV or whatever figure you have written is wrong, because Euler's formula is always satisfied. It will be satisfied for all the polyhedrons. सारे polyhedrons पे Euler's formula satisfy होता है. सिर्फ जो curve वाली figures होती हैं जैसे sphere, cone, cylinder, उस पे Euler's formula satisfy नहीं होता. किसी एक पे बाय चांस हो जाता है, वो बाय चांस है. अदरवाइज Euler's formula will be satisfied only for the polyhedrons. तो satisfy होना चाहिए. अगर गलत आता है इसका मतलब you have to again think about your FEV. Fine. So this was all about prism and pyramid. Rest next 10.3 we will discuss tomorrow. Till now anyone wants to ask anything? अब आपने अपनी नोटबुक में आज क्या क्या लिखना है? प्रिज्म की डेफिनेशन, पिरामिड की, पॉलीहेड्रन्स क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीहेड्रन्स क्या होते हैं, ठीक है. फिर ये यूलर्स फॉर्मूला, फिर वो जनरल FEV, जनरल फॉर्मूला फॉर द FEV ऑफ प्रिज्म एंड पिरामिड्स. उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं वेरीफाई करने वाले वो. फाइन. एनी डाउट? So now I'm going to end the class, beta. See you tomorrow. Yes, Rohit. मैम होमवर्क क्या है? शाबाश. अभी तो सारा बोला है बेटा मैंने होमवर्क आपको. You ask any of your friend or you can see this video later.